हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 213 के बारे में। चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में। तो ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है उसके बारे में 213 अनुच्छेद बताता है। 213 आर्टिकल सेज पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinances during recess of legislature. 213 article says power of governor to promulgate ordinances during recess of legislature. Number 1, if at any time except when the legislative assembly of a state is in session or where there is a legislative council in a state, except when both houses of the legislature are in session, the governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. He may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require, provided that the governor shall not without instructions from the president promulgate any such ordinance if राज्यपाल के अध्यादेश जो लाने की शक्ति है उसकी बात की जा रही है। अध्यादेश की जो शक्ति है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लाया जाता है या लगाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। नंबर ए, a bill containing the same provisions would under this constitution have required the previous sanction of the president for introduction thereof into the legislature. Or B, he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president. Or C, an act of the legislature of the state containing the same provisions would under this constitution have been invalid unless, having been reserved for the consideration of the president, it had received the assent of the president. Number 2, an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of the legislature of the state assented to by the governor, but every such ordinance A shall be laid before the legislative assembly of the state, or where there is a legislative council in the state before both the houses, and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the legislative assembly and agreed to by the legislative council. If any upon the passing of the resolution, or as the case may be on the resolution may agreed to by the council, and B may be withdrawn at any time. B may be withdrawn at any time by the governor. Explanation.
स्पष्टीकरण क्या कहता है? Explanation. Where the houses of the legislature of the state having a legislative council are summoned to resemble on the different dates, the period of 6 weeks shall be reckoned from the latter of those dates for the purposes of this clause. Number third, if and so far as an ordinance under this article makes any provisions which would not be valid if enacted in an act of the legislature of the state assented to by the governor, if shall be void, provided that for the purposes of the provisions of this constitution relating to effect of the legislature of a state which is repugnant of an act of parliament or an existing law with respect to a matter enumerated in the concurrent list, an ordinance enumerated in the concurrent list, an ordinance promulgated under the article in pursuance of instructions from the president shall be deemed to be an act of the legislature of the state which has been reserved for the consideration of the president and assented to by him. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ. अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति. अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति. नंबर 1, उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, ऐसी परिस्थिति में तो वे ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो. परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना, यानी उनका अनुदेश लेना होगा राष्ट्रपति का, उनके अनुदेशों के बिना कोई भी अध्यादेश राज्यपाल प्रख्यापित नहीं करेगा. यदि का वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुनर्स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा संविधान के अधीन होगी. ए या खा वे वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता है, या गा वैसे हर उपबंध अंतर्विष्ट करने वाला राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अधिविधि मान्य होता है जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई होती है. नंबर 2, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होगा या होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश का राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा और उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है तो यदि विधान परिषद है तो वे उससे सहमत हो जाती है तो यथास्थिति संकल्प के पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा संकल्प से सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी. और नंबर खा राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा. स्पष्टीकरण इसके बारे में
जहां विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। नंबर 3, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता, तो वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। परंतु राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम के जो समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट जो होती है वो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव से संबंधित इस संविधान के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए यह है कि कोई अध्यादेश जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया जाता है, राज्य के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और जिसे उसने अनुमति दे दी है। तो ठीक है, कल मैं पढ़ूंगी अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में, चैप्टर 5 द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। संविधान को पढ़ते रहें, बस यही मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वीडियो चाहे चले या ना चले, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।